So, hello everyone. My name is Prasham Trivedi. I am a first year MBBS student currently studying at the BJMC Ahmedabad, and I passed my NEET in 2022 with an All India rank of 73 by scoring 700 marks. Today, I'm here working for SATI, an initiative of the Ministry of Education started of the Government of India. And today I shall be talking about the topic of human reproduction. So this is स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी में हमारा एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक समरी डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड ह्यूमंस आर विविपेरस, वी गिव बर्थ टू यंग वन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर क्वाइट डिफरेंट ऑल्दो देयर आर वेरी होमोलोगस ऑर्गन्स। Male reproductive system में we have a pair of testes, accessory ducts, accessory glands and external genitalia. और जैसे मैं बात करूँ तो testes में there are testicular lobules and in each lobule there are highly coiled seminiferous tubules. अब हर seminiferous tubule के अंदर we have the spermatogonia and Sertoli cells. The spermatogonia are the germ cells. Now the spermatogonia undergo meiotic division to leading to sperm formation. और सर्टोरी सेल्स का काम है इन डिवाइडिंग जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब लेडिक सेल्स जो है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं उनका काम है टेस्टिकुलर हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन्स का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज द पीनस। नाउ वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम includes the pair of ovaries, a pair of oviducts, uterus, vagina, external genitalia and a pair of mammary glands. The ovaries produce the female gamete, that is the ovum, and some steroid hormones like the ovarian hormones. Ovarian follicles in different stages of development जो है वो हमें स्ट्रोमा में दिखते हैं of the ovary. अभी oviducts, uterus and vagina are female accessory ducts. अब uterus has three layers: perimetrium, myometrium and endometrium. And the female external genitalia includes the mons pubis, the labia majora and the labia minora, the hymen and the clitoris. Now the mammary glands are one of the female secondary sexual characteristics. ये समझने वाली बात, याद रखने वाली बात है कि mammary glands are not organs, they are secondary sexual characteristics. Next, the process of germ cell formation, right, gamete formation. So spermatogenesis results in the formation of sperms. ट्रांसफर करते हैं उसको मेल एक्सेसरी डक्ट से। अब नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म हैज अ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब ऐसे जो फीमेल गैमीट फॉर्मेशन है उसको बोलेंगे oogenesis. There is a reproductive cycle called a menstrual cycle, and the menstrual cycle starts only after attaining sexual maturation, that is puberty. During ovulation, only one ovum is released for menstrual cycle. Cyclical changes in the ovary and the uterus during menstrual cycle are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. तो जो पिट्यूटरी है और ओवरी है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करेंगे जो डिसाइड करेंगे कि जो उस साइड का जो फॉर्मेशन है उसका मैच्योरेशन है वो किन स्टेजेस में होगा, किस तरीके से होगा, कब शुरू होगा, कब उसको टेम्पररी हॉल्ट दिया जाएगा। एक बार स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं टू द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा और उसी वक्त जाइगोट का सेक्स यानी कि एम्ब्रियो का जो सेक्स है वो डिटरमाइन हो चुका होता है, डिटरमाइन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द स्पर्म. Now the zygote undergoes repeated mitotic division to form a blastocyst. इसको इम्प्लांट करता है यूट्रस में और अगर एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है तो हम कहते हैं कि द प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुल. अब 9 महीने तक डेवलपमेंट होता है इन द यूट्रस ऑफ द मदर और उसके बाद फीटस की डिलीवरी होती है जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन. पार्चुरेशन की इंटायर प्रोसेस जो है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसमें काफी सारे हार्मोन्स का रोल है और लैक्टेशन जो नवजात शिशु है उसके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी है और पहले कुछ लगभग 6 महीनों के लिए अब तो जो शिशु है उसे केवल माँ का दूध ही दिया जाता है. तो ये हमने बात की एक ब्रीफ क्विक समरी की. अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ जो क्वेश्चंस दिए गए उसको सॉल्व करके डिस्कस करते हैं, राइट.
ओके, तो पहले क्वेश्चन बहुत ही इजी, फिल इन द ब्लैंक। मैं आपसे पढ़ दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है ये तो। ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, humans are viviparous, they give birth to young ones, you know that. Fertilization is internal in humans. Male and female gametes are haploid क्योंकि meiosis होता है, meiotic division होता है. Zygote is diploid क्योंकि fusion होता है, उसके बाद बनते हैं. अब process of release of ovum from mature follicle, this is the definition of ovulation. Sorry, ovulation. Ovulation is induced by a hormone. अब hormone का नाम है LH, luteinizing hormone. Fusion of male and female gametes, again definition of fertilization. Fertilization कहाँ होता है? Ampulla of oviduct में. Zygote divides to form a blastocyst, and वो blastocyst का implantation होता है uterus में. आखिरी blank है कि the structure which provides vascular connection between fetus and uterus, जो mother और child के बीच का vascular connection है, जिसमें uterine arteries है, umbilical arteries है and umbilical vein है, that structure is called the placenta. Okay. आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो बहुत ही सिंपल, लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, टेस्टिस और उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स, जो डक्ट सिस्टम, जो ग्लैंड सिस्टम है, प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इन सबको आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका भी डायग्राम बहुत ही सरल है, जिसमें आप ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस के सभी पार्ट्स और यूट्राइन वॉल के जो सभी लेयर्स है उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, राइट। वो डिस्क्राइब आपको लेबल करने हैं, ठीक से ड्रॉ करें, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो वेरी सिंपल, यू नो दे आर गोनाड्स, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उनका एक तो फंक्शन है इज द जेनेसिस ऑफ germ cells. Next is they also have a endocrine function. An endocrine function, so they do the synthesis of hormones. So testis में होगा spermatogenesis plus the secretion of testosterone by Leydig cells. Ovary में होगा oogenesis plus the secretion of progesterone and estrogen. Next is describe the structure of a seminiferous tubule. So the structure of a seminiferous tubule, मैंने पहले डिस्कस किया था कि एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है, राइट, जो सेप्टा के द्वारा फॉर्म होते हैं, और उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही हाईली कॉइल्ड होते हैं। अब यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होगा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सीधी बात है, स्पर्म प्रोडक्शन करवाना है तो यू नीड जर्मिनल एपिथेलियम। उसके अंदर दो सेल होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और होता है सर्टोली। स्पर्मेटोगोनिया आर द मेल जर्म सेल्स, राइट, दे आर द मेल जर्म सेल्स। एक मिनट, मैं आपको so spermatogonia are the male germ cells, right, they produce the primary spermatocytes, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का meiotic डिवीजन होगा, सेकेंडरी बनेंगे और फाइनली स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। स्पर्मेटिड्स का मेटामॉर्फोसिस होता है, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और बनता है स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म। तो सर्टोली सेल है, तो जो सर्टोली सेल है दे आर द नर्स सेल, वो ख्याल रखते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, राइट, फिर नरिश द जर्म सेल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ही काफी सारे लार्ज पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। उनका काम है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, द मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड वी हैव टू ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर बात करूं, spermatogenesis is a phenomena of sperm production from immature germ cells in males, right, very simple process। कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, वो आप जानते हो। फिर प्रोसेस में होता क्या है? the diploid germ cell enlarges, diploid primary spermatocyte, फिर पहला meiotic division, meiotic division होगा meiosis 1, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो दो इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब उनका होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 2,
जिससे हमें बनते हैं 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो हमारे पास एक जर्म सेल में से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने और जो स्पर्मेटिड्स है वो मेटामॉर्फोसिस करेंगे, प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस and they will form the spermatozoa, right? So this is your spermatogenesis. Next we have name the hormones involved in regulation of spermatogenesis. So the hormones involved in the regulation of spermatogenesis are LH, GnRH, FSH and the androgens. So LH stands for luteinizing hormone, Leydig cell triggering synthesis and secretion of androgens. सिक्रीशन सिंथेसिस होता है इसका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से, और ये जो है लेडिक सेल्स पे एक्ट करते हैं और ट्रिगर करते हैं सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। उसके बाद आते हैं जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच करवाते हैं। उसके बाद आता है एफएसएच। तो एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है और उससे सिक्रीशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स व्हिच एड इन स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये उनका काम है। और आखिर में एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन्स है, दे ट्रिगर इनहिबिट प्रोडक्शन रेगुलेटिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, moving on to the next question, that is define spermiogenesis and spermiation. So what is the difference between these two kind of similar looking, similar sounding terms? So spermiogenesis, it is the phenomenon of transformation of non-motile spermatids to mature motile sperms. मतलब ट्रांसफॉर्म करना है एक नॉन मोटाइल इमेच्योर स्पर्मेटिड को मैच्योर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। Spermiation जो है, spermiation is a phenomenon where mature spermatozoa are released from the Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubules. मतलब जो immature जो spermatozoa है, जो embedded था एक सेल में of the seminiferous tubules, वो वहां से निकल के जो seminiferous tubule है उसके lumen में आता है and it is ready to be released into the secretions. उस process को, उस release को बोलेंगे हम spermiation. ठीक है, next we have draw label diagram of a sperm. Again an NCERT diagram, very simple. You have to show every part, that is the head, neck, middle piece and tail. Mitochondria है, फिर न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, तो इन सारी चीजों को आपको लेबल करना है, ठीक से ड्रॉ करना है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा है जो सीमेन होता है, उसमें स्पर्म के साथ जो भी दूसरे एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, उस सिक्रीशन जो सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है? तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा आर सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ मेल, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल, और उसका मेन कंपोजिशन है कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सम अदर एंजाइम्स। Next we have what are the major function of male accessory ducts and glands. तो male accessory ducts जो है कौन से है? Vasa efferentia, retitestis, vasa deferentia and epididymis. उनके फंक्शंस की बात करते हैं कि वासा एफरेंशिया जो है स्पर्म्स को रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस की ओर ले जाते हैं, उनको जोड़ते हैं। रेटिटेस्टिस जो है वो स्पर्म को थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्टोर करते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से फ्रेशली निकले हुए होते हैं। Vas deferens conducts sperms from epididymis to urethra, and epididymis is a physiological maturation of is responsible for physiological maturation of sperm, the storage and nourishment. Next we have the male accessory glands. So we have a seminal vesicle, prostate, and cowper, or also known as the bulbourethral gland. So seminal vesicle का जो secretion है, that provides energy to facilitate sperm motility. Secretion में fructose होता है, तो that serves as a source of energy, right? And sperm motility होता है। Prostate का secretion है, जिसे nourishment and activation of sperm होता है, sperm motility बढ़ती है, और alkalinity होती है,
जिससे वो यूरिन की जो एसिडिटी है, जो ट्रैक्ट की एसिडिटी है, उसे न्यूट्रलाइज कर सके। जो काउपर ग्लैंड है, जो बर्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है, उनका काम है टू एनहांस मोबिलिटी एंड सर्वाइवल पोटेंशियलिटी ऑफ स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव द फीमेल, राइट। तो जो उनकी स्पर्म सर्वाइव होंगे तभी जाके वो फर्टिलाइज कर पाएंगे। इफ दे आर पोटेंट, ओनली देन दे विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. What is oogenesis? And give a brief account of the entire process of oogenesis. तो oogenesis क्या है? Formation of haploid female gamete. Meiosis होता है क्योंकि diploid oogonia से बनता है। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एक मेच्योर डेवलप्ड फॉलिकल है, उसमें से जो है ओव्यूलेशन होता है और जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, वो रिलीज होता है। प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है फीटल लाइफ में और लगभग 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेरिनल लाइफ में, लेकिन फिर उसको मतलब स्टैसिस में रखा जाता है और सिर्फ इनिशिएट वापस उसको शुरू किया जाता है ओनली व्हेन प्यूबर्टी सेट्स। तो जो oogenesis का प्रोसेस है उसके 3 फेज है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज की बात करते हैं। इस फेज में फॉलिकल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम, से माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें। फिर फ्यू फॉलिकल सेल्स दे एनलार्ज और उनको बोला जाता है मदर सेल्स, और उनका फिर माइटोसिस आगे भी होता है और फिर उनको नाम दिया जाता है oogonia। ठीक है। तो ये oogonia का फॉर्मेशन हुआ विद डिप्लॉयड प्रोजेनिटर सेल्स या फिर एग मदर सेल्स। फिर ग्रोथ फेज में आते हैं। One of the oogonia of the egg nest differentiates while the rest change into surrounding nutritive follicular epithelium. तो डेवलप बहुत सारे होते हैं oogonia, लेकिन एक ही जो है वो आगे के फेज में जाता है, बाकी सारे जनरेट हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव फॉलिकुलर एपिथेलियम बनाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वो जो डिफरेंशिएटेड आइसोलेटेड oogonia है उसका साइज में इंक्रीज होता है, उसका नरिशमेंट होता है और एक प्राइमरी oocyte बनता है जो डिप्लॉयड होता है। फिर आता है थर्ड फेज, तो मैच्योरेशन फेज। तो जो मैच्योरेशन का फेज होता है, इस फेज के दौरान डिप्लॉयड मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं। डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है 2 हैप्लॉइड सेल में, लेकिन ये अनइक्वल साइज के सेल्स होते हैं, जिसमें लार्जर सेल होता है एक सेकेंडरी oocyte और छोटा वाला होता है एक पोलर बॉडी। अब polar body is useless, that is just a way to remove that extra chromosome, और सेकेंडरी oocyte जो है वही आगे का डिवीजन करेगा। नाउ meiosis 2 occurs, सेकेंडरी oocyte स्प्लिट होता है, एक बड़ा ooted और एक टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी में एक और पोलर बॉडी, और इस पोलर बॉडी में कुछ काम नहीं है, वो रीजनरेट हो जाएगा। तो द ooted continues to develop. Now this is slightly controversial. कई बुक्स कहते हैं कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिवाइड नहीं होता, कई कहते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी splits through mitosis to form 2 polar bodies. The NCERT is a little vague about it, they have not talked about it, so you can, I guess, consider any of those aspects, but I would say that it will be better if you, so yeah, हम oogenesis में थे। तो as I was saying कि जो oogenesis की प्रोसेस है उसमें हम मैच्योरेशन फेज में थे। तो जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट था मैंने उसके बारे में आपको बताया कि NCERT इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। आपको मतलब इट इज बेटर इफ यू डोंट राइट अबाउट इट, नो, बट ऐसे 2 पॉपुलर ओपिनियन है कि आइदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स और द फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट डिवाइड। ठीक है। नेक्स्ट वो आगे क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ मैं कि नाउ द ooted होता है that develops into a functional haploid ovum. That one primary oocyte produces 1 large ovum and 3 polar bodies, जो in turn degenerate होते हैं और
as they do not participate in reproduction, thus leaving behind only one functional ovum. तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से. किस तरीके से उसके बारे में बताता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम है उसमें से 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं, लेकिन oogenesis का जो प्रोसेस है उसमें एक्चुअली केवल एक ही फंक्शनल ओवम बनता है फ्रॉम वन ओगोनियम. एंड सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं बात करूं तो either 2 or 3 polar bodies are formed and only one functional ovum is developed. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू द ओवरी. अगेन NCERT diagram. You have to draw the cross section of and transverse section of an ovary showing various stages of development of the oogonium right from the primary follicle through the and tertiary and graphene follicles showing the process of ovulation, and then at the end also the regressing graphene follicle shown as the corpus luteum, and then finally as the corpus albuginea. Right. उसके बाद आते हैं हम एक draw label diagram of a graphene follicle. So you know graphene follicle is a mature follicle. Follicular antrum है, corona radiata है, secondary oocyte उसके अंदर होता है. Now the secondary oocyte is surrounded by a layer of cells of corona radiata. It is kind of connected with the peripheral wall via a stalk, right? जिसको बोलते हैं cumulus oophoricus. उसके आजू होता है, आजू बाजू होता है, उसको बोलते हैं discus proligerus. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is discus proligerus, this is cumulus oophoricus, and then there's the basement membrane, the theca layers, theca interna and externa are also seen, right? So that is the graphene follicle. Next we have the next question says we need to write the functions of the following structures. So the corpus luteum, तो जब graphene follicle rupture होता है तो corpus luteum में convert होता है. Now it secretes the hormone progesterone during the luteal phase of the menstrual cycle. अब progesterone secretion ऊंचा रहेगा तो LHFSH को negatively inhibit करेगा, इससे आगे का ovulation नहीं होता है. The corpus luteum facilitates the endometrium of the uterus to proliferate and prepare the for the process of implantation. Right? Very simple. You already know about this. Next we have is the endometrium, which is the innermost lining of the uterus. तो इसमें ग्लैंड्स होते हैं और इसका डेवलपमेंट साइक्लिक होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिससे वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट we have is the acrosome. Acrosome is a part of that of the sperm. It's at the top of the sperm, and acrosome is located in the anterior section of the head of the sperm. Cap-like structure है, उसमें प्रेजेंट होती है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम. इसका काम है कि एग के आउटर मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज करना, जिससे क्या होगा कि हमें स्पर्म एग को परफोरेट कर पाएगा, and that will facilitate the process of fertilization. All right. Next is sperm tail. Sperm tail makes up for the longest part of the sperm, enabling the movement of the sperm once it has entered the female reproductive tract. Very simple. Last is the fimbriae. So the fimbriae are present towards the ovarian end of the fallopian tube. Right? Finger-like projections है, जिनका काम है कि ओवम को उठाना. Ovulation हुआ, ओवम को उठाओ और उसको भेजो यूट्रस की तरफ. Okay. Next, true or false? Androgens are produced by Sertoli cells. आपको जानते हैं androgens are produced by Leydig cells. Spermatozoa get nutrition from Sertoli cells. That is again that's a true statement. Okay. Next we have Leydig cells are found in ovary. False. वो तो testis में मिलते हैं आपको. Leydig cells synthesize androgens. That is a true statement. Next we have oogenesis takes place in corpus luteum. But that is wrong because corpus luteum to graphene follicle का degenerated part. Oogenesis takes place in ovary, which is very basic. Now next is menstrual cycle ceases during pregnancy, which is true. क्योंकि इस बार there is successful pregnancy, there is continuous high level of progesterone, जिससे negative inhibition होगा secretion of LH and FSH. अगर LH and FSH low है तो कोई नया egg बनेगा नहीं.
ovulation नहीं होगा, तो again the cycle will not take place. Last is presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. It is a true statement, very true statement. So let's come to our next question. 17th question. Menstrual cycle क्या है and which hormones regulate menstrual cycle? So menstrual cycle is cycle observed taking place in the females. 28 दिन की cycle होती है. Cyclic physiological changes occur in the female reproductive tract. और उसका culmination होता है in the collapse of the uterine endothelium that is liberated in the form of blood and mucus to the vaginal opening. इसको बोलते हैं menses. Now the different hormones involved are the LH, the FSH, progesterone, VS. अब 3 फेज होते हैं. फॉलिकुलर फेज जो है उसमें FSH, LH का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है. GnRH जो है उसका लेवल इंक्रीज होता है, इसलिए FSH का लेवल इंक्रीज होता है. और इनका काम है टू कन्वर्ट प्राइमरी फॉलिकल इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल. So releasing hormone secretion होगा hypothalamus में primary to graphene follicle conversion, that is the function of FSH. Gradual increase in LH causes the follicle to grow and causes secretion of estrogen, क्योंकि जो follicle develop होगा वो follicle खुद estrogen secretion करवाएगा, right? अब estrogen secretion बढ़ा तो FSH घटा और उसके साथ साथ LH का secretion बढ़ेगा और spike करेगा. अब amplified secretion of LH results in rupture of graphene follicle. इससे release of ovum into the fallopian tube, which is called ovulation. अब जो ruptured graphene follicle है, that transforms into a corpus luteum. ठीक है, I'll show you that. So we have the corpus luteum, which secretes the hormone progesterone. अब ये यहाँ से शुरू हो जाता है luteal phase. अब hormone progesterone assists in maintaining and preparing the endometrium for the process of embryo implantation. अब जब progesterone level is high in the blood, the FSH and LH secretion decreases, which furthermore hinders the process of ovulation. Moving on, ये हो गया आपकी cycle. Next question is 18. What is parturition and what are the hormones? So parturition is a process जिसके अंतर्गत fully developed fetus from a mother's womb is expelled after the completion of the gestation period. The two critical hormones that are involved in the induction of parturition are oxytocin and relaxin. Oxytocin है full term fetus को बर्थ कैनाल की और सर्वाइकल कैनाल की ओर उसको धकेलता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑफ द मायोमीट्रियम, जिससे बेबी एक्सपेल होता है. रिलैक्सिन जो हार्मोन है, इट रिलैक्सेस द पेल्विक लिगामेंट्स, widens the pelvis to assist in a easier childbirth. ठीक है, very basic, very logical explanation. अगला क्वेश्चन थोड़ा सोशियो कल्चरल है कि you know society women are often blamed for giving birth to daughters. Well, लेकिन ये scientifically completely incorrect है, and we already know that. You know, I will quickly go through it. Humans, we have 23 pairs of chromosomes. 22 pairs are autosomes, 1 pair is a sex chromosome. अब जो लास्ट पेयर है मेल में XY होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है, फीमेल्स में XX होती है. नाउ जब मियोसिस होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो मियोसिस के रूल्स के अनुसार और उसके अनुसार हम जानते हैं कि 2 प्रकार के मेल गैमीट्स बनते हैं. X ऐसे गैमीट जिसमें X क्रोमोसोम हो और कुछ ऐसे जिसमें Y क्रोमोसोम. ठीक है, और फीमेल्स हम जानते हैं क्योंकि वो XX होती है तो होमोगैमेटिक ही होती है. They produce only one type of gamete, the ova, which carries the X chromosome only. Now once the male and female gametes have fused, zygote बनेगा. अब या तो XX बनेगा तो या XY बनेगा. अब हम जानते हैं कि फीमेल का गैमीट तो X ही होता है, तो मेल का गैमीट या X होगा या Y होगा. अगर मेल का गैमीट X क्रोमोसोम कैरी करेगा तो XX कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर Y क्रोमोसोम कैरी करेगा तो YXY कॉम्बिनेशन बनेगा. तो
XX होगा तो जो फीचस है, जो बेबी है वो फीमेल होगा, अगर XY है तो मेल बेबी का बर्थ होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि the sex of the baby or the sex of the embryo is determined by the sperm, that is the male germs. Does not depend on the woman, it does not depend on the mother, but on rather on the father. तो बेटा होता है या बेटी होती है, ये माँ तय, वैसे तो कोई तय नहीं करता, ऊपर वाला तय करता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली सोचे तो इसके पीछे का कारण मदर्स एग नहीं है, it is the father's sperm which is responsible for the particular sex of that baby, right? So that is a very wide, still I am surprised, but there is still this wide notion in some very backward parts of the society, which is well, it's sad to know still exists. Anyway, moving on to the 20th question. Very simple question. How many eggs are released by human ovary in a month? How many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to identical twins? And would your answer change the twins were born were fraternal? तो एक महीने में हम जानते हैं कि केवल एक ही एग रिलीज होता है, कभी कभार दो हो जाते हैं ना। 28 दिन की साइकिल है तो एक ही एग रिलीज होगा, महीना खत्म हो जाएगा। लेकिन कई कभार दो रिलीज हो जाते हैं, हो सकते हैं। अब अगर आइडेंटिकल ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मैटरनल ट्विंस है, तो भाई साहब इनमें क्या होता है, एक ही एग रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म के साथ होता है, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्प्लिट होता है। वो जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो का अलग अलग स्टेज है, वहां पे वो स्प्लिट होते हैं, जुदा होते हैं। तो इसलिए उनको आइडेंटिकल बोलते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही था, सिर्फ सेल अलग अलग हो गए, और फिर सेल अलग अलग हो गए, अलग अलग जगह चिपक गए यूट्रस में, और दो बेबीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विंस है, जो डाइजाइगोटिक ट्विंस है, उनके केस में दो एग्स रिलीज होते हैं और दो अलग अलग स्पर्म उनको फर्टिलाइज करते हैं, इसलिए उनका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो भी काफी अलग होता है। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, आते हैं हम अपने आखिरी सवाल पे। So how many eggs do you think were released by an ovary of a female dog which gave birth to 6 puppies? A very simple logic. 6 puppies का बर्थ हुआ तो सीधी बात है कि 6 एग्स जो फीमेल डॉग की ओवरी ने है रिलीज किए होंगे। और हम जानते हैं कि लोअर एनिमल्स में तो मल्टीपल बर्थ, बहुत सारे बेबीज इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना, है ना। आप अपने आसपास देखिए, जो कुत्ते बिल्ले हैं उनके काफी सारे बच्चे होते हैं। सो यस, 6 zygotes were formed for each to develop into a puppy. तो गाइज, इसी के साथ we finish our exercise. We've discussed thoroughly every question and I hope you understood all that was there, and I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। Thank you. That's it from my side. Prasham Trivedi signing off.